Hello and welcome to MVP The Master's Voice podcast from MediaBrief.com. I'm your host and friend Pawan R. Chawla. And with me today is someone I am privileged to call a very dear friend. He is actually the friend of the entire advertising, marketing, creative, media buying, anything to do with marketing kind of industry, sector, subsector, everybody, club, body, individual, professional, leader, you name it. I don't think there's anybody from the junior most fresher to the senior most, you know, marketing and industry captain who is not uh, aware of, does not know, and does not hold or holds Bipin Pandit in anything but the highest esteem. What I gave away the name. Please join me in welcoming Bipin Pandit, Chief Operating Officer of the Ad Club Mumbai, one of the most reputed and significant ad clubs, not just in India, but across the APAC region. And that is due in large part, I think half of it goes to Bipin Pandit, the credit and his team. And the rest, of course, is all to the wonderful, impeccable, peerless leaders that the Ad Club Mumbai has given, not just to Indian advertising, but global advertising as well. So, Bipin, welcome to MVP The Master's Voice podcast, and thank you for your time. Hi, Pawan. I think it's my privilege to be here on the show. And in fact, we were planning to have this show for quite a long time. Thank you for the sweet words, but you know what I want to do? I know you are going to come to why we are having it now, but let me say that to our people, to all our audiences and your fans. Everybody loves you, Vipin, and thank you for being here. And I think I'm the first in that queue of people who really like and admire you, and you're a dear friend I hold in high esteem. So thank you once again. थोड़ा ये mutual admiration society बन गई है, but this is all from the heart. Let me tell all my viewers, Vipin, and listeners, and those who will read the post also from Media Brief, that 21st of September is the day when Bipin's amazing, excellent, very popular live music show. It's like a huge event that happens every year, and this is its 19th edition, 21st September. Humar from 4 p.m. St. Andrews Auditorium, Bandra. This will be the 19th edition of this super popular show that celebrates music and multiple singers. But this edition, the one that's coming up now, is the first one that will celebrate only one singer, the peerless, great, legendary singer Mohammad Rafi Sahab. And you know, if Rafi Sahab had been alive, this would have been his 100th year. He would have celebrated his 100th birthday on the 24th of December 2024. So, while the great Rafi Sahab is not amidst us physically, in soul and spirit, he will always be here in our hearts. And that is what Humar Bipin Pandit's super popular live show will raise a toast to on the 21st of September at 4 p.m. at St. Andrews Auditorium in Bandra, Mumbai. If you still haven't booked your tickets and passes, oh my God, you're going to miss something huge. So, Bipin, welcome. And very quickly, let's get on to our questions, okay? Humar, नाम तो नाम तो क्या, इस नाम के इवेंट के काम ने भी सबको खुमार से भर दिया है. लेकिन tell me about Humar and what went behind starting this wonderful show of yours that everybody in the advertising, marketing, enterprise industry is so always gung ho on. Tell me. Thank you, Pawan. Firstly, thanks for all the kind words expressed. And it's a pleasure to be on your show. In fact, both of us discussed many a times, but I think you couldn't have chosen a better moment and a better time than inviting me at this particular stage. Firstly, we are all bhakts of Lord Ganesha, and Absolutely. and I'm going to do this show also on 21st. So this is a most opportune time and a fabulously chosen moment to get me on the show. So thanks for that. Absolutely. Absolutely. Kumar actually happened because I was a stage artist for quite a long time. Okay. All your stage shows of Babla, Gunjan, Jhankar, Beatles at that point of time, I used to do three shows in a day also Oh my on God. Saturdays and Sundays. Oh. Yeah, at some shows I used to take an entry as a compare, and at some shows I used to do a stint of mimicry for 20 minutes or half an hour. Ah, acha. Okay. Yeah, I mean,
there was one particular day at Sahitya Sangha Mandir when I did 3 shows on the same day for Larsen and Toubro. Oh, okay. Yeah, so I was an invited artist at that point of time. So when I joined Ad Club, we did, we do some of the biggest shows Absolutely. of the country, in fact, by only the club. And they are really world class shows. So I gained a lot of experience in event management, event organizing. And then I thought that the artist in me thought that I have this experience of musical nights, performing in front of a large audience. So why not start my own banner? Why not start my own show, which will give this industry a lot of happiness? Yeah. And I could see that people in our industry were stressed up. In fact, me myself doing so many shows and all of Can that club imagine. also. It is not that it is devoid of pressure. There is a lot of pressure. So I thought I must give some sort of happiness to people, fun, and whereby they come and forget everything else, just music. Right. So now, for anyone who's been living under a rock or who has just come out of college and joined the industry and suddenly heard of Bipin Pandit and Kumar, उनके लिए बताओ, for the complete idiot, assume I am the idiot who doesn't know about Kumar. Tell me what is Kumar in about 2 or 3 sentences. Well, my tagline is Kumar नहीं देखा तो क्या देखा. अच्छा, अब जिसने नहीं देखा उसको बताओ. हाँ, so जिसने नहीं देखा, I'm sure for that particular person when he sits in the auditorium where Kumar is performing, he will get an experience that is different from other shows. Correct. So just give them the specifics. It's a live music show. Live musical show whereby artists of great merit, be it singers or musicians, perform. The thing is, it is a properly segmented show. ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है सोलो गा रहा है, कोई आ रहा है ड्यूएट गा रहा है, कोई आ रहा है कव्वाली. No, it is solos, it is duets, it is regional song, it is kawali, it is ghazal, it is Popular medley. music across all the Popular wonderful across all genres, and live which will people, live appeal to your taste. orchestra, live singing, and Bipin Pandit being the thread in the middle of all the pearls, making a Yes, beautiful necklace. I give the tadka of shairi and mimicry in क्या between, बात है, क्या and बात some anecdotes which I share, which people है. love actually. Wonderful, So, wonderful. Hi friends, Bipin R. Pandit here. It's Kumar time once again. And this time it's a special Kumar celebrating 100 years of the legendary Rafi Saab. I'm thankful to my presenting sponsor Tribes, my powered by sponsor Net Value Media, my gift sponsor Zodiac and Mondelez, and my NGO partner LOLT. बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरा शो फिर एक बार हाउसफुल कर दिया. पिछले 19 साल का प्यार आपने कायम और बरकरार रखा है. थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल द कुमाराइट्स एंड द ऑडियंस. आप जरूर आना, इसका प्रेजेंटेशन देखना, इसका सेगमेंटेशन देखना और चॉइस ऑफ सॉन्ग देखना. इट विल स्टैंड आउट एंड द सिंगर्स एंड द म्यूजिशियंस ऑल्सो विल स्टैंड आउट. प्लीज कम, एंजॉय, सिटी बजाइए, डांस कीजिए, मजा कीजिए. सी यू एट कुमार. तो विपिन, आज तक तो खुमार हैज इन द पास्ट, पिछले 18 एडिशंस में खुमार हैज concentrated never on only one singer. It's always been a lot of singers, and you've brought a lot of fresh talent to the fore. And the best thing for any youngster who's singing for the first time on is presented through Kumar. The entire advertising, marketing, creative industry, the top leaders, professionals. So yeah. So what happens is they all see them and they say, okay, this is a good voice. Let's talk about it. Hey, talk to him. So I'm sure they have a lot of opportunities and they've sort of flourished, all these new singers. इस बार सिर्फ रफ़ी साहब को आपने खुमार में सेलिब्रेट करने के लिए चुना है. You have this, you're willing to fight with anyone. एक बार मैंने कहा हाँ ये गाना इन्होंने बहुत अच्छा गाया लेकिन वो वाला गाना उसने अच्छा गाया.
आपने मेरा हाथ पकड़ लिया जोर से, मुझे याद है 2 हफ्ते पहले। नहीं नहीं, मैंने कहा भैया ऐसा है, आई एम नॉट अ सिंगर बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट रफ़ी साहब का जो बॉडी ऑफ वर्क है वो पियरलेस है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, कारवां गुजर गया, मतलब मैं क्या क्या गाने बताऊं आपको। तो आप मुझे बताओ कि रफ़ी साहब के लिए जो आपके मन में इतना इतनी भक्ति है और कोई शब्द नहीं है, तो वो क्यों है, कब से शुरू हुई? क्योंकि आप बाबला और इस तरह के डिस्को वगैरह वगैरह गाने, इवेंट्स वगैरह करते थे, विच आर ग्रेट इन देयर ओन, ग्रेट फन इन देयर ओन राइट, बट वहाँ पे आप शायद कुछ और करते। लेकिन रफ़ी साहब इज़ एन अबाइडिंग लव, एक बार उनकी आवाज़ कान के रास्ते आत्मा में उतर गई तो बात खत्म। आप रफ़ी साहब के फ़ैन या भक्त कब से बने? और मुझे 10 गाने उनके टॉप के जो आपके फेवरेट हैं, नो एक्सक्यूजेज, नो अरे ये तो बहुत मुश्किल दुविधा, मैंने आपको पहले लिख के दिया था ये क्वेश्चन, आपने 10 की लिस्ट मुझे पढ़ के बतानी है। तो लंबा सवाल, छोटा जवाब दीजिए। रफ़ी साहब के फ़ैन क्यों, कब, और 10 उनके जो टॉप के गाने हैं, फिर अपन और आगे बात करेंगे। रफी साहब मेरे ख्याल से जितने भी प्लेबैक सिंगर मैंने सुने उनमें वो एक ही सिंगर ऐसे जिनके लिए मैं गायकी की गायकी की यूनिवर्सिटी, क्या बात, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है रफी साहब। वाह, और मैं ये कहता हूं कि सारे उस वक्त जो लेजेंड थे, आई एम म्यूजिक लवर, सारे महान है अपनी अपनी जगह, जी, लेकिन अगर मैं गाना सीखना चाहता हूं, अगर मैं सिंगर बनना चाहता हूं, तो जब मैं रफी साहब को सुनता हूं तब मेरी एजुकेशन कंप्लीट होती है। क्या बात है। जो इंसान, जो सिंगर एट एनी लेवल मोहम्मद रफी को नहीं गाएगा, वो अच्छा सिंगर नहीं बनेगा। क्या बात है, नहीं आई टोटली एग्री विथ यू, बिल्कुल। दूसरी बात, किसी का वॉइस अच्छा होता है, किसी का वॉइस स्टैंड आउट होता है, थ्रो स्टैंड आउट होता है, लेकिन रफी साहब एक ऐसे सिंगर है, वाहिद सिंगर, जो जो भी पैरामीटर्स है सिंगिंग के, हरकत, मुर्की, खटका, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, थ्रो ऑफ वॉइस, आवाज में मिठास, आवाज में माधुर्य, और जो आवाज जो है जो तुम्हारे रूह में, तुम्हारे दिलों में बसती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि झूठा गले से गाता है, क्या बात, भूखा पेट से गाता है, लेकिन सच्चा दिल से गाता है। वो रफी क्या साहब, बात है, क्या बात है, इसलिए मुझे रफी साहब पसंद। क्या बात है। और रफ़ी साहब and his amazing talent can be enjoyed vicariously through Bipin Pandit's Khumar on the 21st of September from 4 p.m. at St. Andrews Auditorium, Bandra, Mumbai. So, you know, just get in touch with Bipin if you want to reach out to him and you don't have his number, which will be very strange. Get in touch with us. We will put you through to Bipin and you can try and pray for a pass being available. क्योंकि बैंड्रा का जो ये ऑडिटोरियम है ये खचाखच भरा होने वाला है। तो इस शो के बारे में बताओ विपिन। नहीं नहीं नहीं, एक आप भूल गए, टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ रफी साहब। पहले वो लिस्ट कीजिए एक के बाद एक के बाद एक, नो डेफिनेशन, नथिंग, ओनली द 10 सॉन्ग्स। Yes, I will take up this very very difficult task given to me by you, extremely difficult, but लीजिए मेरा पहला सबसे गाना, एंड नहीं 10 से ऊपर आओ ना, 10 से ऊपर आओ, हाँ काउंटडाउन करते हैं, 10 9 8। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं कहूंगा कि 10वें पैदान पर मैं रखूंगा गुलाबी आंखें, बदन पे सितारे, अय्या करूं मैं क्या सुक्कू सुक्कू। ये गाने तो, ये सब क्या है, ये म्यूजिक अच्छा है, बीट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे मैं आ रहा हूं गायकी की ओर। हाँ, ये पॉपुलर नंबर से जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तो 3 तो आपके हो गए। हाँ। नहीं चलिए 10 में इस तरह के गाने जिसमें 3 है। अच्छा आगे, ट्राई टू गिव मी 1 सॉन्ग ना फॉर ईच। अच्छा आई लीव इट टू यू, गो अहेड। 9 पे ये, हाँ 9 पे मैं 9 पे नंबर लूंगा, आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत पे इतना हमें न सताओ। वाह, फिर मैं कहूंगा कि है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया बन गया किसी का। हाँ, फिर इसमें मैं सोलोज नहीं, ड्यूएट्स भी लूंगा तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट ड्यूएट है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, लक्ष्मी प्यारे का करेक्ट। लाजवाब ये मुझे आपने ड्यूएट है। आईएए के पिछले इवेंट में कहा था, और मैंने आपसे कहा था कि मेरा पर्सनल फेवरेट, आई कांट हेल्प सेइंग, इट इज कंपोज्ड बाय जीएस कोहली फ्रॉम शिकारी। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा धड़क रहा है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल। गोइंग अप, किस नंबर पे पहुंचे हम? 8वें पे। हाँ, ऑफ कोर्स देन दीवाना हुआ बादल, ओ नैयर ऑल सॉन्ग। टाइम ग्रेट सॉन्ग। फिर एक गाना है, फिर मिलोगे इस बात का वादा वादा कर कर लो, लो, हमसे एक रात मुलाकात का वादा। हमसे एक मुलाकात का वादा कर लो। बेहतरीन सॉन्ग, सुपर सॉन्ग, ब्यूटीफुल। एक फिर आता हूं म्यूजिक डायरेक्टर रवि की ओर, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने गाना दिया था, बेहतरीन सॉन्ग, जाने जाने बाहर, हुस्न तेरा बेमिसाल है, बेमिसाल है, हुस्न तेरा बेमिसाल क्या है, बात है, लाजवाब गीत है। हाँ हाँ हाँ। आपको एक बात बताऊं रफी साहब की, उन्होंने मुझसे कहा था कि इतने अच्छे इंसान थे, उनका लास्ट इंटरव्यू मेरे साथ हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, अनफॉर्चुनेटली वीडियो पे नहीं था तो मैं नहीं दिखा सकता, उन्होंने कहा था कि रफ़ी साहब इतने महान सिंगर थे, इतने अच्छे इंसान थे कि कई बार किसी भी प्रोड्यूसर ने उनसे कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पर आपका गाना चाहिए, तो वो कहते 500 रुपये में भी गाना गा देते थे। इज सच ए गुड मैन। और कोई मांग ले कुछ तो जेब में आखिरी 10 रुपए होंगे तो वो भी दे देंगे, अच्छा दे देना बाद में। बिल्कुल, और देते समय ये कहते थे, किसी ने बगल में पूछ लिया कि रफी साहब आपने गिना नहीं, ऐसे ही दे दिया, तो बोले भगवान ने देते समय मुझे गिना नहीं, तो मैं बात है, क्या बात है। ओके, तो ये गाना, फिर ऑफ कोर्स क्लासिकल में चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, बेहतरीन गाना है, नो डाउट अबाउट। बिल्कुल। न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार, न किसी के दिल का करार हो, बहादुर शाह जफर। यस। मधुबन में राधिका नाचे है। ओके। वो दुनिया के रखवाले, मैं इसलिए कहूंगा कि वो जो लेवल पे और जो रेंज में उन्होंने गाया, शायद ही कोई गा पाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी, उसके बाद आरोही प्रोग्राम में नौशाद साहब ने उन्होंने बुलाया था, तो वो प्रोग्राम में उन्होंने जो गाया लाइव, तो जो ओरिजिनल जो गाना गाया था, उसकी जो ऊंचाई थी उसको भी क्रॉस कर गए। बाप रे, he gives me the goosebumps। और वैसे तो इस गाने के लिए कोई डेफिनेशन या कोई रीजनिंग देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो आपने बताई ना बात कि भाई इतना ऊंचा गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बिट ऑफ ट्रिविया है। रफी लवर्स विल लव इट। यस। और रफी साहब के साथ सभी म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा पसंदीदा रोमांटिक गीत, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इससे बढ़कर रोमांटिक गाना मुझे कोई नहीं लगा। हाँ, बहुत रोमांटिक है वैसे, मुझे पता है। मैं रोमांटिक मिजाज रखता हूँ, तो इसलिए हसरत जयपुरी, जो रोमांस के बिल्कुल किंग थे, इन्होंने ये लिखा है। राजकुमार फिल्म का गाना है, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज के। इससे बेहतर रोमांटिक गाना मैंने नहीं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, अगेन हसरत जयपुरी साहब का गीत है। मदन मोहन साहब पे आऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से रोशनी लाओ। हाँ, और तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फिर उनका एक और गाना, जो वो मेरा नंबर 1 गाना होगा। मैं जानता हूं आप कहां से आ रहे हो। जो मैं जिंदगी में मुझे कोई पूछे कि सबसे बेहतरीन कंपोजिशन, विपिन तुम्हारे लिए एक ही चॉइस है। अक्रॉस सिंगर्स, सभी सिंगर्स का मिला के, पूरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन कंपोजिशन, मैं ये कहूंगा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। क्या बात है, ये मुरादों की हंसी। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और बेमिसाल बिल्कुल बेमिसाल। और जो आपने जो रोमांटिक गानों की बात कही, तो मदन साहब का ही एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक गाना, इट्स ब्रेथ टेकिंग एंड वन बाय चित्रगुप्त, बट मदन मोहन साहब का गाना था एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, और चित्रगुप्त साहब का गाना जो फिरोज खान पे फिल्माया गया था, कौन सा? जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसले यार की। अच्छा, आगे
ये 10 तो ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाने की लाइन या उसके बारे में उसका जिक्र सुन के भी ना मन में बजने लगता है वो। अच्छा, हाँ, और बताएं। बिल्कुल। और वैसे उन्होंने सभी लोग के लिए बहुत अच्छे गाने गाए, लेकिन मैं समझता हूँ रफी साहब एक ऐसे सिंगर है ना जिन्होंने अपनी आवाज से स्टार्स बनाए, सुपरस्टार्स बनाए। क्या बात है। अभी प्रदीप कुमार, हम्म, मैं नहीं कहूंगा कि ये बेहतरीन एक्टर है, वो मुगल के जमाने के रोल किया करते थे, राजा महाराजा के, लगता था कि लेकिन पेंटिंग में से एक राजा आके खड़ा हो गया, थोड़ा आगे स्टिल गए सा, लेकिन बहुत मन। खूबसूरत काम करते थे जिस तरह से उनको दिया जाता था। बिल्कुल। मन रे तू काहे न धीर धरे, उनको ही गाना वो दिया। निर्मोही मोह न जाने। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, हम इंतजार करेंगे, हम्म, फिर जो वादा किया निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। ताजमहल। फिर आए जॉय रोशन साहब, मुखर्जी। हाँ, फिर। फिर आए जॉय मुखर्जी। ओह यस, एब्सोल्युटली। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाने जनाना, लव इन टोक्यो, तुम हम्म, मेरे पास रहते हो, कोई हम्म, दूसरा नहीं रहता। करेक्ट। और एक और बहुत अच्छा गाना था, रोमांटिक एन इवनिंग इन पेरिस का, रफ़ी साहब ने आशा जी के साथ गाया था शंकर जयकिशन की म्यूजिक पे। वो था रात के हम सफ़र थक के घर को चले। ब्यूटीफुल। हाँ, कंटिन्यू प्लीज, मैं बार बार बीच में आ जाता हूँ क्योंकि मुझे भी उतना ही फिर पसंद है। आप फिर आप देखो, यहाँ पर आ गए हम। रफी साहब ने पूरे कपूर खानदान के लिए गाया। यस। पृथ्वीराज, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर। अब आप ये देखो कि एक ही आदमी गा रहा है, ग्रैंडफादर से बच्चों ग्रैंड सन तक। उनकी आवाज की रेंज आपको पता चलता है, और हर किसी के लिए अलग अंदाज, जैसी पर्सनैलिटी। शशि कपूर के लिए गाया चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, ब्यूटीफुल। लिखे जो खत तुझे, बेमिसाल। करेक्ट। ऋषि कपूर के लिए दर्दे दिल गाया। फिर सारे गाने हमारे लैला मजनू के उन्होंने गाए। फिर बिल्कुल पर्दा है पर्दा गाया। बिल्कुल। क्या क्या गाने गाए, और क्या रेंज में गाने गाए। वाहिद एक ऐसे प्लेबैक सिंगर है जिन्होंने भजन गाया तो भजन लगता है, बिल्कुल। जिन्होंने कवाली गाई तो ऐसा लगता है कवाली है। क्या बात है। और सुमन कल्याणपुर जी के साथ जो क्लासिकल अरे डुएट गाया था वो, ओह क्या वो ब्रिलियंट। राजेंद्र कुमार, देखो आप, कितना है हमसे प्यार कहो मेरे राजदार, फिर अजहुनी आए बालमा यस, सावन इसी की बीता मैं बात जाए। कर रहा था, अर्जुन आए बालमा सावन बीता क्या जाए। क्या गाने गाए। अच्छा, अब आप अपने टॉप फेवरेट की तरफ आ रहे हैं, मेरा ख्याल अग्रसर हैं उस तरफ। तो ये सारे गाने जो मैंने आपको बताया, जो मैं जब फ्लो में था, तो मेरा टॉप फेवरेट, तो मैंने जैसे कहा कि जहां तक रेंज है क्लासिकल की, तो मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन नंबर 1 पे मैं रंग और नूर की बारात किसे रखूंगा। पेश करूं। किसे पेश करूं, न किसी की आंख का नूर हूं। फिर ओ दुनिया के रखवाले, मधुबन में राधिका नाचे रे, इस रंग बदलती दुनिया में। फिर बदन पे सितारे, गुलाबी आंखें, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। ये फिर मदन मोहन साहब का ही चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। ये गाने मेरे बहुत ही पसंदीदा गाने हैं, मेरे बहुत फेवरेट गाने हैं। वंडरफुल। अच्छा, अब बताइए कि, और ये मैं फिर से इसलिए प्लग कर रहा हूं कि लोगों को याद रहे कि 21 सितंबर 21st of September is Kumar from 4 p.m. St. Andrews Auditorium, Bandra, and this is something that my dear peerless friend and great organizer of such beautiful musical events, to say nothing about the Ad Club of Mumbai events, लेकिन ये हुमार जो है ये मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में होगा, would celebrate what would have been his 100th birthday in this year. तो हुमार जो 21 सितंबर 4 बजे सेंट एंड्रूज बैंड्रा में है, विपिन, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का फॉर्मेट होगा, कितने सिंगर्स होंगे, कितने समय से आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, और लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, जैसे ये आपने पहले ही प्रियम्प्ट कर दिया कि मैंने कभी एक सिंगर को लेके शो नहीं किया जी। बट सबसे पहले रफी साहब मेरे फेवरेट सिंगर है, और दूसरी बात 100 ईयर्स है, एंड आई एम अ म्यूजिक लवर, तो मैं एक तो शो उनके लिए बनता है। अरे, साइड में यूट्यूब पे मेरी सीरीज चल रही है, मैं सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू कर रहा हूँ, जैसे प्रसून जोशी है, पिनाज मसानी है, अनुराधा पौड़ाल, अनूप जलोटा,
शांतनु मोहित्रा का इंटरव्यू हो गया, तो ये अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूशन रफी साहब के लिए करना है, एज अ लवर ऑफ रफी साहब। ओ, तो ये ऐसे लोग भी होंगे इस हाँ, कुमार में? तो कुमार में मैंने देखो अभी बोला एक इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ, मोहम्मद रफी अवार्ड, ओके। which will be a regular feature. And I thought कि I will give this to one person who truly and thoroughly deserves it, क्योंकि because he was a disciple of Mohammad Rafi, the late Mahendra Kapoor, late and great Mahendra Kapoor. He was a disciple, चेला, उन्होंने गंडा बांधा था रफी साहब का, बहुत बढ़िया, गुरु शिष्य परंपरा में, और वो रफी साहब के चेले थे, और बाकायदा उन्होंने बहुत ही अच्छा रिश्ता निभाया, ये गुरु और शिष्य का, और ही इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, तो हिज सन इज गोइंग टू कम टू। ओके, रोहन, मैंने रफी साहब के डॉटर को और उनके जमाई को बुलाया। क्या बात है, क्या बात है। अख्तर जयपुरी साहब, जावेद हमारे जयपुरी साहब के, हसरत साहब के बेटे, उनको बुलाया। अच्छा, तो एक आपको बात बताऊं, मैंने सुनी थी ये कि महेंद्र कपूर साहब बहुत भक्त थे रफी साहब के, नो डाउट अबाउट दैट। और जिस तरह आपने कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा वाला जो इन्होंने, जो सिराजे अकीदत ही समझिए उसको, जो उनके चरणों में रखा रफी साहब के अपने मन में। लेकिन ईश्वर ने भी महेंद्र साहब का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मौका तब दिया ओपी नैयर साहब ने जब रफी साहब थोड़ा ओपी नैयर साहब से गुस्सा हो गए थे, and he wanted, so I think then came songs like बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, उसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी ए माँ। तो मतलब God will conspire or God will not conspire, but will make things come together beautifully. And yes, wonderful. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रफी साहब के परम शिष्य एक तरह से, जिनको आप मानते हैं, महेंद्र कपूर साहब, और इन सबको आप बुला रहे हैं। और क्या क्या होगा? कितनी देर का शो होगा ये? कुमार ऑन 21 सितंबर एट सेंट एंड्रूज 4 PM। अच्छा, तो ये आपने जो पहले ही कहा कि रफी साहब महासागर है, आपने कहा यूनिवर्सिटी है वो, रफी साहब को 2-3 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने 8 सिंगर्स है मेरे। ओके। उसमें से 6 मेल है, 2 फीमेल है। 3 सिंगर सिर्फ बंबई के हैं। अच्छा, ओनली 3 आउट ऑफ द 8। हाँ, बाकी 5 आउट ऑफ मुंबई, बाहर, मुंबई के बाहर से, ताकि जो मेरे ऑडियंस आते हैं उन्हें सारा फ्लेवर एक ही रूफ के अंडर मिले। क्या बात है। और इसकी प्रेजेंटेशन, सेगमेंटेशन बहुत अलग होगी। मैं अभी अगर प्रीएम्प्ट कर दूंगा तो लोगों का वो जो सस्पेंस है। नहीं, डोंट गिव मी एनी डिटेल्स। लेकिन जैसे आपने कहा कि अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, सेगमेंट्स होते हैं शो के, तो वो सब होंगे, ये वेल प्लान्ड है पूरा। और इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे, कुछ उनको ट्रिब्यूट्स वगैरह देंगे। बहुत अच्छे लोग इंडस्ट्री के आने वाले हैं। क्या बात है। और ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रफी साहब का 360 डिग्री एंगल होता है ना, आई मीन इन आवर पार्लेंस, पवन, मैं कहूंगा कि 360 डिग्री कैंपेन है रफी साहब। क्या बात है, क्या बात। इंटीग्रेटेड पूरा, एक पर्सनालिटी में सब कुछ है। तो वो जो मिसाल है रफी साहब की, जो रेपुटेशन है, उसको जस्टिस देना मैं एक कोशिश करूंगा। ये शिव धनुष्य है जो मैंने उठाया अभी। क्या बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप में वो काबिलियत भी है, आई एम श्योर, एंड आई डोंट से दैट जस्ट बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ यू एंड आई लाइक यू, बट योर वर्क हैज स्पोकन फॉर इटसेल्फ ओवर द लास्ट 18 years, इवन विद कुमार अलोन। बाकी और जो बड़ी बड़ी, मतलब साउथ एशिया की और इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री इवेंट्स करते हैं, आप करवाते हैं, और इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ मिलके एट क्लब जो करता है, दे आर अमेजिंग, दे आर प्योरलेस। और ये बात भी मैं कहूँ कि ये जो 360 डिग्री वाला, जो बहुत ही बेकार जार्गन वाला शब्द हर एक यूज़ करता है, उस तरह का तो कुछ भी नहीं होगा आपके शो में। इस शब्द से मेरे को ना थोड़ी सी कोफ्त है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एवरीबडी नोज कि हाँ आप क्या कह रहे हैं। एकदम होलिस्टिक अप्रोच होगा, और बहुत अच्छे से हर पहलू को आप नज़ाकत से और बारीकी से देखेंगे, टटोलेंगे और उसको प्रस्तुत करेंगे। तो गाने कितने होंगे और लिस्ट किस किसने चुनी है? आप ही ने चुनी होगी लिस्ट, क्यूरेट आपने किया होगा? पवन, मैं मेरे गाने की लिस्ट 5 महीने पहले सिंगर्स को देता हूँ। अच्छा। और मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। बहुत बार सिंगर्स
को ये एक जर्म होता है कि यार मैं ऐसी हरकत डालूं, ऐसा क्लासिकल सुनाऊं, इसके पहले ये रागधारी करूं। मैं बोलता हूं तुझे वो गाना है जो मैं कहूंगा, और बिल्कुल कट टू कट और अच्छा गाना है। थोड़ा एनकरेज करता हूं जरूर जी, कि जी। अपनी अपनी एड लिबिंग करो अपना, लेकिन मैं कहता हूं कि ये गाने को एड लिब दो, अच्छा लगेगा, खुलकर आएगा। कोई कोई कलाकार अलग होगा तो उसे स्टेज में से एंट्री दे देता हूँ, जैसे देवानंद लुक अलाइक है तो लोग को अच्छा लगता है। जी, जी, जी। क्या बात है! भाई मज़ा आ गया इतनी सारी बातें सुन के। और रफ़ी साहब जो हैं, यू नो अ लॉट मोर अबाउट हिम देन आई डू और देन मोस्ट पीपल डू, क्योंकि आप भी उनके भक्त हैं। तो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, फिलैंथ्रोपिक नेचर वगैरह, और क्यों वो इतने रेलेवेंट हैं, ये तो बेकार सवाल है। क्यों रेलेवेंट है मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो फिलैंथ्रोपिक नेचर था, गिविंग नेचर था, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो, what you have heard, things that are interesting that you want to share with us. एक बात है पवन इसमें कि रफी साहब का जो स्तर है ना, एक नॉर्मल इंसान का नहीं है। बिल्कुल। कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, ये मानता हूं मैं। जी, जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खास विशेष पावर और भगवान के प्यारे इंसान होते हैं। उनमें रफी साहब का नाम अव्वल आएगा। तो वो इंसान आम आदमी की तरह सोच नहीं रखता था। वो नंबर 1 सिंगर नहीं होते तो उसकी भी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो सूफी सेंट की तरह ही पेश आते जी। और जैसे आपने कहा कि लोगों के पास से पैसे न लेना और गाना, बिल्कुल, लोगों को खीसे में से निकाल के देना। ये रवि साहब ने मुझे बताया, म्यूजिक हाँ, डायरेक्टर रवि साहब, उनके आखिरी इंटरव्यू था। हाँ, बिल्कुल। ये उनका नेचर था। और जैसे कि हमारे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जो है, हाँ, वो कहते हैं कि रफी साहब, अगर मैं रूम में बैठा हूं और सामने से रफी साहब आए तो मुझे ये महसूस होता था कि उनके साथ साथ कोई और पावर चल रही है। क्या बात है! क्या और मुझे ये महसूस होता था कि उनके साथ साथ कोई और भी आया है, अब कोई और, या ये पावर ऊपर वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भगवान की, खुदा की, गॉड की आवाज है लिटरली मेरी नजर में। मैं ये बात, दूसरों सिंगर्स अच्छे लेकिन वो आवाज भौतिक है, ये भगवान की आवाज है। भगवान मिल जाए और मैं कहूँ कि मुझे गाना सुना तो वो निस्संदेह रफी साहब जैसा गाए। तो ये भगवान भी अपने भक्तों पर जो करता है, वो एक तरह से भक्तों को संभालता है, उनको एड करता है, उनको हेल्प करता है, उनको देता ही है। वैसे ही रफी साहब का नेचर। This is MVP The Master's Voice podcast, and with me is the master of the most amazing musical events, the series called Khumar, that he has created for the last 18 years, and in its 19th edition, it's going to celebrate the wonderful Mohammad Rafi Sahab. Bipin Pandit, COO of the Art Club Mumbai. Bipin, why Khumar for everybody who loves music and Rafi Sahab? The plain and simple reason is Khumar is a show that is with difference. It will stand out in terms of its presentation and uniqueness and segmentation. That is the reason why you have to come and watch Khumar. Khumar is not like any other show. It will be different. And Khumar is on the 21st of September in Mumbai from 4 p.m. at St. Andrew's Auditorium, Bandra. And thank you ever so much, my dear friend Bipin Pandit, for having created Khumar and this special edition, the 19th one, which will celebrate Mohammad Rafi Sahab. And Pawan, the good news is 85% of the show is almost full. Wow. अच्छा, 85% almost मतलब 80% तो fully full. 100%. Wonderful. आप सुन रहे हैं MVP द मास्टर्स वॉइस पॉडकास्ट। मैं हूं पवन आर चावला, मेरे साथ है बिपिन पंडित, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द आर्ट क्लब मुंबई। बिपिन, 21 सितंबर को खुमार है, मोहम्मद रफ़ी साहब को डेडिकेटेड। आपका ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉपुलर ये एक सीरीज़ है। तो 21 सितंबर 4 बजे से सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम बांद्रा में खुमार ऑन मोहम्मद रफ़ी द स्पेशल, क्या होगा इसमें? ये शो सबसे अलग होगा। इसका प्रेजेंटेशन का अंदाज अलग होगा, इसके गाने की चॉइस, सिलेक्शन अलग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ बंबई में शो हो रहा है, इसलिए ये नहीं कि बंबई के आर्टिस्ट में पेश कर रहा हूँ। 5
आर्टिस्ट मैंने पूरे साल में देख करके आपके सामने ला रहा हूं, और एक तरह से आपको पूरा मसाला भर के, पूरा तड़का लगा के आपके सामने ये शो आएगा, जिसमें मैं रफी साहब का अवार्ड भी देने जा रहा हूं, रफी साहब के नाम का, जो एक रेगुलर फीचर बन जाएगा। क्या एंड द बात बेस्ट है, पार्ट इज, इसमें बहुत अच्छी सेगमेंटेशन होगी रफी साहब के गानों की। क्या बात है। सो ग्रेट कंटेंट, 8 सिंगर्स, खुमार, वंडरफुल। विपिन, आपको बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर दिस एपिसोड ऑफ खुमार द 19th एडिशन। Bipin, I have truly enjoyed this conversation with you, reliving and getting the goosebumps as a result of thinking again of the wonderful songs of the great peerless Mohammad Rafi, the great singer with the biggest, most impactful and significant body of work across the entire musical industry of India, film, non-film, whatever. Really, I'm keeping the classical greats out, but otherwise हर इंसान जो संगीत सुनता है और पसंद करता है, फिल्मी गैर फिल्मी, वो मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता। So I have enjoyed this talking to you about Kumar, which comes on the 21st of September from 4 p.m. at St. Andrews Auditorium, Bandra। आपका शो है। मुझे बहुत मज़ा आया और बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली और अच्छे अच्छे गाने भी आपने याद कराए। आपको कैसा लगा? What did you think of your chat with me and of what, the kind of work that Master's Voice podcast and Media Brief does for the industry, with the industry? So, Bhavan, firstly, I'll say this, that whatever questions you are asking me and whatever was coming out, I know for sure that the man who's interviewing me is equally mad and passionate about music. And Rafi And, Sahab. and he knows his onions very well. So, that is the first thing. Secondly, I felt great to talk about the legend, and your questioning was absolutely to the point. And you, I think, got the best out of me when it comes to Rafi Saab. So I enjoyed it. And हिंदी में जैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, हमने बहुत इसकी प्लानिंग की थी, लेकिन ये भी कहा है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो ये फल मीठा नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा ही मीठा था, तो बहुत क्या मजा आया। बात है, क्या बात है। And what do you think about Media Brief and Master's Voice podcast and everything else? I think you have taken up this initiative for quite some time, and you are doing it relentlessly, and getting some very, very distinguished guests on your show. And I think those pearls of wisdom which are shared by those people, and whatever you are trying to get out of them when they are on the show, and that you put up so religiously, I think it is not only being done pretty well, exceedingly well, but I think it is helping many people to gain in knowledge and learn from their wisdom. That is very important. Thank you. I thank you with humility on behalf of Media Brief, the entire team. It's a huge team now, and we keep trying to do great content. जैसे आपने कहा, अगर सुर अच्छे होते हैं, ये पहले बात हो रही थी हमारी रिकॉर्डिंग से पहले, सुर अच्छा होगा तो गाना अच्छा होगा। हम कहते हैं कंटेंट बढ़िया बनाएं, बाकी जो एंगेजमेंट है, कनेक्शन है, इम्पैक्ट है, वो ईश्वर ऊपर वाला जो है वो दे ही देता है। तो वी आर वेरी हम्बल एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू एक्चुअली बिपिन फॉर योर वंडरफुल वार्म वाइज वर्ड्स। एंड अब ये बताएं कि जिसने अभी तक टिकट्स नहीं बुक की हैं और जो ये एपिसोड सुनने के बाद कहेगा कि भैया मैं पूना में हूँ या दिल्ली में हूँ या गुवाहाटी में हूँ, मेरे पास वक्त है, मैं आ सकता हूँ, तो वो टिकट्स आपसे कहाँ से ले? तो मेरी वेबसाइट है www.bipinpandit.com। उस पे मैंने क्रिएटिव रखा है और 3 नंबर शेयर किया है। जी, ओके। और ये नंबर पे लोग आकर के टिकट ले सकते हैं। और आज मेरा वीडियो भी मेरे वेबसाइट पे लगेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है बिपिन आर पंडित खुमार। उस पे अगर लोग सब्सक्राइब करें तो उसमें भी आए दिन प्रमोशन चालू है, वीडियोस और सब कुछ है। सारे सिंगर्स ने अपना अभिप्राय दिया है कुमार पे। क्या बात है। जो 8 सिंगर्स गाने वाले हैं, सारे लोगों ने कहा कि कुमार उनके लिए क्या है। वेरी गुड। तो सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ उधर मिल जाएगा। और मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि आपकी वेबसाइट की स्पेलिंग है www.bipinpandit.com।
Pandit, BIPINPANDIT.com. Wonderful. So, Bipin, thank you very, very much for being on the show, and was really very enjoyable, really experience talking to you about the passion and the great love that Mohammad Rafi Sahab's singing elicits and sort of inspires everyone by. Thank you very much. That was the amazing, the peerless, and my dear friend Bipin Pandit, Chief Operating Officer of the Art Club Mumbai, on MVP The Master's Voice podcast, this edition, this episode. I hope you enjoyed it. I found it very engaging and very enjoyable in terms of what Bipin said to me. I really loved it. I hope you did too. Till we meet again in the next episode of MVP The Master's Voice podcast, this is your host and friend Pawan R. Chawla saying, take care, stay safe, stay musical, stay entertained, and do not, whatever you do, miss Humar on the 21st of September from 4 p.m. at St. Andrew's Auditorium, Bandra. Bye bye.